آپ سب بہت چیزیں جانتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے مقدس مرقس کی معرفت یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5واں باب۔ پہلی 13 آیات پڑھیں گے۔ جن بہن بھائیوں کے پاس بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے۔ جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے ایک آیت پڑھ سکتے ہیں جی۔ اور وہ جھیل کے پاس فرنگیوں کے علاقہ میں پہنچے۔ جب وہ کشتی سے اترا تو پھر اور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی اوپر سے نکل کر اس سے ملا۔ کپڑوں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا۔ کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلتا اور اپنے سینے پتھروں سے جذب کرتا تھا۔ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے بندر، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح، اس آدمی میں سے نکل آ۔ پھر اس نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام نصرت ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا پہنچا رہا تھا۔ بس انہوں نے اپنی محنت کر کے کہا کہ ہم کو سوروں میں بیچ دے تاکہ ہم اس میں بند ہوں۔ بس اس نے ان کو اجازت دی اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئی، اور وہ اور جو کوئی 2000 کا تھا اس کرائے پر جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب گیا۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب مل کے بولیں گے آمین۔ خداوند کی شکر گزاری ہے، یہ بہت ہی خوبصورت خدا کا کلام ہے۔ مقدس مرقس کی انجیل جو ہے، یہ مقدس مرقس نے مقدس پطرس کی رہنمائی میں لکھی، کیونکہ مقدس مرقس یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے نہیں تھا، اور پطرس جو تھا یہ ناخواندہ تھا، یہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اس لیے اسے ضرورت محسوس ہوئی کہ انجیل لکھے، تو اس نے اس انجیل کے لکھوانے میں مقدس مرقس کی رہنمائی کی اور اس نے یہ انجیل لکھی۔ اور چونکہ یہ پڑھا لکھا شخص بھی تھا اور یہ اسی زمانے کا شخص تھا جب یسوع مسیح اس زمینی زندگی میں آیا، اور جتنی خدمت 33.5 سال میں یسوع مسیح نے کی، یہ اسی زمانے کا شخص تھا، اور اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ سارے واقعات اس انجیل مقدس میں پیش کیے۔ کچھ واقعات کا
ये ऐनी शाहद भी था, और बाकी जितनी भी इंजील लिखी गई ये मुकद्दस पतरस की रहनुमाई में लिखी गई। दूसरे अल्फाज में मरकुस की इंजील को मुकद्दस पतरस की इंजील भी कहा जा सकता है। और यहाँ पर जो वाकया पेश किया गया, ये गलील की झील के करीब गरासीनियों के इलाके का वाकया है। गलील की झील या गनेसरत की झील ये एक ही बात है, क्योंकि इसके एक तरफ गलील का इलाका था और एक तरफ गनेसरत का इलाका था, और इसी तरह से उसके पार अगर जाएं तो वहां पर एक कब्रिस्तान था जो गरासीनियों के इलाके का कब्रिस्तान था। और अब ये गरासीनियों का जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, इसमें कब्रिस्तान है, ये वीरान और सुनसान इलाका है, क्योंकि कब्रिस्तानों में कम ही लोगों का आना जाना रहता है। और हमारे मैदानी इलाकों में तो जो कब्रिस्तान होते हैं उनमें लोग दरख्त भी लगाते हैं, लेकिन जो खुश्क पहाड़ों में कब्रिस्तान कारनुमा कब्रें जैसी कब्र यीशु मसीह की थी, वहां पर बहुत सुनसान और गैर आबाद और बियाबान ही नजर आता है। उस इलाके के अंदर एक शख्स है जो तन्हा, और लिखा है कि वो कपड़े नहीं पहनता, वो बहुत बुरी हालत में है और उसमें बदरूहें हैं, और लोग उसको जंजीरों से और बेड़ियों से बांधते हैं, और लिखा कि अब उसे कोई जंजीरों और बेड़ियों से भी बांध नहीं सकता था। क्यों? इसलिए कि उसने बार बार जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और फिर ये उन पहाड़ों में उस बियाबान के अंदर चिल्लाता, भागता दौड़ता, और लिखा है ये अपने तई जख्मी करता, ये अपने जिस्म को जख्मी करता था। इस कदर उसकी अफसोसनाक हालत है। ये शख्स काबिल रहम है, क्योंकि इब्लीस ने, बुरी रूहों ने इसकी हालत ये कर दी है कि ये ना तो अपने बच्चों में जा सकता है, ना अपने माँ बाप के पास, ना अपने बच्चों के पास, ना अपने रिश्तेदारों के पास, ना अजीजों के पास, ये किसी आबादी में नहीं जा सकता। इब्लीस ने इसकी ये हालत कर दी है, इतनी तशवीशनाक हालत है कि ये बहुत ही अफसोसनाक, अगर उस मंजर को बगौर देखा जाए तो ये बहुत ही इंसानियत की तस्लील है जो इब्लीस ने उसका हाल किया है। याद रखिएगा, जितने लोग इब्लीस की फेवर में रहते हैं, जितने लोग इब्लीस के कामों को तरजीह देते हैं, जितने लोग खुदा की बातों से ज्यादा, खुदा के कलाम से ज्यादा इब्लीस को तरजीह देते हैं, इब्लीस उनकी बहुत बुरी हालत करता है। इस हालत को देखिए जरा, इस शख्स की बहुत भयानक हालत है, बड़ी अफसोसनाक हालत है। लेकिन यीशु मसीह हमारा खुदावन, हमारा नजात दहिंदा, जो इस जमीनी जिंदगी में जहां पर भी देखा गया वहां पर बड़ी भीड़ है, बड़े लोग हैं, बड़े बीमार हैं, बड़े परेशान हाल लोग हैं, बड़े भूखे लोग हैं, और हर तरह के लोगों के तमाम तरह के मसाइल का हल यीशु मसीह के पास
मौजूद है। कहीं पर वो लंगड़ों को चलाता है, कहीं पर वो अंधों को आंखें देता है, कहीं पर वो बहरों को कान देता है, कहीं पर वो अपाहज लोगों को जो मफलूज हैं उनको उठा खड़ा करता है, कहीं पर वो मुर्दों को जिंदा करता है। और इसीलिए बड़ी भीड़, बहुत से लोग यीशु को देखना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा शख्स है जो इतने बड़े बड़े काम करता है, जो ऐसा डॉक्टर है जिसकी कोई फीस नहीं है, जो किसी भी तरह से अपने मरीजों के बारे में बहुत ज्यादा तफ्तीश तहकीक नहीं करता, एक चंद अल्फाज बोलता है और वो सब के सब हर तरह की बीमारी से, हर तरह के दुख से छुटकारा हासिल करते हैं। वो कैसा शख्स है, उसे देखना चाहते हैं। बड़ी भीड़, बड़े लोग हजारों की तादाद में यीशु मसीह के पीछे पीछे, ते कुछ रोटियां खाने वाले भी होंगे, है ना। यीशु मसीह ने बड़ी बड़ी दुनिया को रोटियां भी खिलाई। 2 वाक़यात मौजूद हैं। एक बार 4000 मर्द थे, औरतों और बच्चों के अलावा, और एक बार 5000, और शायद बहुत बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन इंजील मुक़द्दस के अंदर सिर्फ 2 बार इन बातों का जिक्र है। अच्छा, यीशु मसीह हर वक्त भीड़ में, लोगों में रहते, लेकिन अगर आज के दौर के लोगों को देखा जाए, हम भी बहुत मसरूफ जिंदगी में रहते हैं, है ना। एक शख्स, एक ही डॉक्टर हो जो सिर्फ एक मसले का डॉक्टर हो, उसके पास भी टाइम नहीं होता। जानते इस बात को? कोई अखां दा डॉक्टर होए ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ कि वो अपने बच्चों ਨੂੰ भी पूरा टाइम दे सके, नहीं होता टाइम। यीशु मसीह जो हर एक मर्ज का डॉक्टर था, उसके पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए तो वो कभी बियाबान में भीड़ से अलग होकर दुआ करता। पढ़ते ना बाइबल मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस में बारहा लिखा है कि वो पहाड़ पर गया और सारी रात दुआ में गुजार दी, है ना। अलग जाने के लिए भी उसके पास बहुत मुश्किल से वक्त निकलता। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। यीशु मसीह जो इतनी बड़ी भीड़ के अंदर रहता है, जिसकी तवज्जो दुनिया के हर एक मरीज पर, जिसकी तवज्जो दुनिया के हर एक अपाहज पर, जिसकी तवज्जो दुनिया के हर एक मुर्दे पर, वो जिस्मानी हो या रूहानी हो, जिसकी तवज्जो दुनिया के हर एक बीमार पर रहती है, वो बहुत बड़ी भीड़ के अंदर भी उसकी तवज्जो ऐसे लोगों पर भी रहती है जो तन्हा रहते हैं, जो नंगेपन का शिकार रहते हैं, जो जख्मी हालत में रहते हैं, जिन्हें जंजीरों से जकड़ा गया है, जिन्हें बेड़ियों से जकड़ा गया है, जो बियाबानों में रहते हैं, जो लोगों में नहीं रहते, जो लोगों में अपने खानदान के अंदर रहते हुए भी उसके अंदर नहीं रहते। यीशु मसीह की ऐसे तमाम लोगों पर भी पूरी पूरी तवज्जो रहती है। कहता है आओ झील के पार चले। क्या है वहां? जब भी ये जानते हैं झील कौन सी है? ये वही झील है जहां पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना मछलियां पकड़ा करते थे। यहीं से इनका चुनाव हुआ है। ये वही झील है। यीशु मसीह का अक्सर इस पर आना जाना रहता था। अब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है कि आओ आज झील के पार चलते हैं, गरासीनियों के इलाके में, कब्रिस्तान में, उस बियाबान के अंदर, जहां पर एक शख्स है जो तन्हा है, जो नंगा है, जो बेयारो मददगार है, जो जख्मी है, जिसे जकड़ा जाता है, जिसे बांधा जाता है,
جو ہر طرح سے دنیا سے الگ کر دیا گیا ہے, جس کی بڑی تشویشناک حالت ہے, اسے شفا دینا بڑا ضروری ہے, اس کے زخموں کو ہیل کرنا بڑا ضروری ہے, اس کی تنہائی کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. یسوع مسیح اس جھیل کے پار, اس تنہا شخص کے پاس, اس اکیلے شخص کے پاس اپنے شاگردوں کے ساتھ چلا جاتا ہے. یسوع مسیح کی توجہ مت سمجھیں کہ ہم کسی گناہ میں ہیں, ہم کسی بدکاری میں ہیں, ہم کسی کو فریب دے رہے ہیں, ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہم کسی کا نقصان کر رہے ہیں, تو یسوع مسیح کی نظر ہمارے اوپر نہیں ہے. وہ تو دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. ہاللویہ. مقدس بیان کرتی ہے وہ انسان کے ارادوں کو بھی جانتا ہے نا. مریم مگدلینی آئی شمعون کے گھر, جب اس نے یسوع کے پاؤں دھوئے, ہے نا, بدچلن عورت تھی. شمعون اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ اگر یہ شخص کھانے کا ارینج کیا یسوع کے لیے, دعوت کی ہوئی ہے, دل میں کیا سوچ رہا ہے کہ یہ عورت جو اس کے پاؤں کو چھو رہی ہے, یسوع اسے جانتا نہیں ہے. کہتا ہے اگر یہ نبی ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ یہ کیسی عورت ہے. تو یسوع مسیح اس کی طرف مڑ کے کہتا ہے, شمعون میں اس عورت کو جانتا ہوں. ہیلیلویہ. یسوع مسیح ہر ایک شخص کو جانتا ہے, وہ بدچلن بھی ہو یا وہ خداوند کے ساتھ چلنے والا بھی ہو, وہ کیسی بھی حالت میں ہو, یسوع مسیح سب کو جانتا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو جانتا ہے, آپ کے کریکٹر کو جانتا ہے, کیا کردار ہے آپ کا, آپ کیا کرتے ہیں, آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں, آپ کی تنہائیاں کس چیز سے بھری ہوئی ہیں, یسوع جانتا ہے. وہاں پہ آپ کیا سوچتے ہیں, یسوع آپ کو جانتا ہے. لیکن جب آپ کی یہ بری حالت ہوتی ہے تو یسوع مسیح کو افسوس تو ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ ترس کھانے والا سردار کاہن ہے, اسے پھر بھی آپ پہ ترس آتا ہے. یسوع مسیح کو اس پر ترس آتا ہے, اسی لیے وہاں پر جاتا ہے. اور وہ بھاگ کے, وہاں پر تو کسی کا بھی آنا جانا نہیں ہوگا, لوگ ڈرتے ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے. بیڑیاں جانتے بیڑیاں کیا ہوتی ہیں, کسی نے بیڑیاں دیکھی ہیں, بیڑیاں کیسی ہوتی ہیں, بیڑیاں ایک ٹخنے میں ہے, گٹیاں دے نال ایک کڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور سلاخوں کے ساتھ ایک کڑا گھٹنے کے اوپر ہوتا ہے. ان دونوں کو اٹیچ کیا جاتا ہے سلاخوں کے ساتھ, اور پھر گھٹنے سے لے کر یہاں تک ایک کڑا ادھر ہوتا ہے, پھر سلاخوں کے ساتھ اس کو اٹیچ, ان تینوں کڑوں کو سلاخوں کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. اور جب بھی کسی کو بھی یہ بیڑیاں لگائی جاتی تو وہ اچھی طرح چل نہیں سکتا. جو خطرناک قیدی ہوتے ہیں ان کو یہ بیڑیاں لگائی جاتی ہیں. اور بعض اوقات ہماری سوچ ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو آزاد تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم خود ہی ان کو بیڑیاں بھی لگانا چاہتے ہیں, ان کو زنجیروں سے بھی باندھنا چاہتے ہیں. کیسے؟ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی, اپنے عزیزوں میں رہتے ہوئے بھی وہ تنہائی کا شکار ہے. وہ اپنے اندر, اپنے خاندان کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم اسے آزاد کرنے کے لیے اس تنہائی سے ہم اسے زنجیروں سے اور بیڑیوں سے باندھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تھنکنگ, اس کا مائنڈ, اس کی سوچ کا لیول جو ہے یہ ہمارے تابع رہے. جو ہم سوچتے ہیں یہ ویسے کرے, تب یہ آزاد ہے. ہم اسے اپنے بندھنوں میں رکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنی بیڑیوں میں اسے جکڑنا چاہتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, یسوع مسیح ایسی شخصیت ہے جو ایسی بیڑیوں سے بھی آزاد کرتا ہے. وہ شخص
वहां पर उस बियाबान के अंदर जब यीशु वहां पर झील के पार पहुंचता है तो वो भागा भागा आता और यीशु मसीह को सिजदा करता है। और जानते हो उसके अंदर कितनी बदरूहें थी? लश्कर था। और मरकुस की इंजील बयान करती है कि वो कोई 20,000 है ना। 20,000 बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर कितने लोग होंगे? 50 से 60 लोग होंगे। कितने हैं? या कोई चंद एक ज्यादा होंगे या थोड़े होंगे। और 20,000 कितने लोग होंगे? ये बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत ज्यादा। अच्छा, यहां पर एक वहां पर छोटी सी बात हुई। जब ये इनकाउंटर हुआ, जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो वो आते ही यीशु मसीह से कहता है, खुदा ताला के बेटे हमें अजाब में ना डाल, है ना। बदरूहों को भी ये खतरा लाहक हो गया कि ये हमें अजाब में डाल दे। तो रिक्वेस्ट क्या करती है बदरूहें? कहते हैं जी ये साथ जो सूरों का गौल चल रहा है हमें उनमें भेज। तो ये सूर मंडली पे जी क्या हुआ? ऐसा ही था। यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ 20,000 ਸੀ ना, ऐसे ही था। वो बहुत ज्यादा थी। सवाल पैदा होता है ना, क्या यीशु मसीह ने उनसे खौफजदा होकर उनकी बात मानी है? क्या हुआ था? क्यों यीशु मसीह ने उनके कहने पर उनको उनकी मर्जी के मुताबिक सूरों में भेज दिया? एक और भी सवाल पैदा होता है। जो सूर चराने वाले थे वो तो उनकी मिल्कियत थे, सूर तो उनकी मिल्कियत थे। तो यीशु मसीह ने उन सूरों का भी बहुत बड़ा नुकसान किया, उनके चराने वालों को, है ना। क्या यीशु मसीह किसी का नुकसान कर सकता है? नहीं। यहां पर दो बातें नजर आती हैं। एक ये नजर आता है कि यीशु मसीह ने उनका बहुत बड़ा नुकसान किया, उनके सारे के सारे सूअर मर गए, है ना। ऐसे ही लिखा ना, वो कड़ाड़े पर से झपट कर समुद्र में जा पड़े और वहां पर डूब मरे। बहुत बड़ा नुकसान। और दूसरी बात कि यीशु मसीह ने बदरूहों के लश्कर की बात मानी। क्या यीशु मसीह उनके ताबे है? दो सवाल पैदा होते हैं। किसी के पास इनका जवाब है कि क्यों ऐसा हुआ? पहली बात कि यीशु मसीह ने इतना बड़ा नुकसान क्यों किया? क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो सूअर है ये एक नापाक जानवर है, इसका गोश्त नहीं खाया जा सकता, इसका आम इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने ये सूअर पाले हुए थे, इसलिए यीशु मसीह ने उनका नुकसान होने दिया। और दूसरी बात कि यीशु मसीह की नजर में एक इंसान की कीमत हजारों सूअरों से ज्यादा है, इसलिए यीशु मसीह ने उन सूअरों का नुकसान होने दिया। जैसे आज भी इंसानों के लिए जानवरों को तलब किया जाता है। ए जिम्मेदार लोग जानते हैं, सब्जियां ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ? इंसानों वास्ते। इंसानों के बदले में जानवरों को मारा जाता है। मच्छर भी तुसी मारते हो, चूहा भी मार, भैनों को तो बहुत पता है ना। इंसानों का नुकसान करने वाले जानवर ने, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसानों की जिंदगी के लिए, इंसानों के नुकसान को बचाने के लिए जानवरों को मारा जाता है, तल्फ कर दिया जाता है,
खत्म कर दिया जाता है। इसलिए यीशु मसीह की नजर में उन सूअरों की कोई कीमत नहीं है जहां पर एक इंसान बहुत भयानक, बहुत तशवीशनाक हालत है। इसलिए यीशु मसीह ने उस इंसान को बचाने के लिए हजारों सूअरों को मरने दिया। दूसरी बात, यीशु मसीह ने क्यों बदरूहों की बात मानी? इतने बड़ी खतरनाक गल है, जरा गौर नाल सुननी, समझने की बात है। जो गौर से सुनेगा उसको समझ में आ जाएगी, नहीं तो उत्तों दी लंघ जानी। ठीक है, यीशु मसीह ऐसी शख्सियत है जो कभी भी इब्लीस के ताबे नहीं है। यीशु मसीह ऐसी शख्सियत है जो हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करता है। यीशु मसीह बदरूहों के उस लश्कर को क्या उसे हुक्म देता था कि इसमें से निकल आ, उनको अजाब में डालना चाहता था। ऐसे ही ना, क्या वो कहते थे कि हमें अजाब में ना डाल? तो यीशु मसीह उनको अजाब में डालना चाहता था। अब ये अजाब से बचने के लिए अपने लिए रस्ते का चुनाव करते हैं। कई बार ना असी अजाब तो बचन लिए खुद एक रस्ते का चुनाव कर रहे होंगे, लेकिन ये इसी तरह से है कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी और भली मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में क्या है जी? मौत की राहें हैं। उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। क्या वो अजाब से बच गए? वो सारे सूअर भी एक तीर च दो शिकार हुए जे। गौर नाल सुनियो जरा, वो सूअर भी जाते रहे अजाब च ते नाल ही बदबूआं दा लश्कर भी। ठीक है, यीशु उनको अजाब में डालने से नहीं डाला। लेकिन दूसरी बात कि उनको जाने क्यों दिया? उनको सूअरों में क्यों भेजा? वहां पर सूअर चराने वाले खुदा के कलाम की मुखालफत कर रहे थे। खुदा के कलाम के मुताबिक सूअर चराना गुनाह था, ये नापाक जानवर था। वो खुदा के कलाम की मुखालफत कर रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने उनके अंदर उनको जाने दिया। अगर गुनाह आपकी जिंदगी में पहले से मौजूद है, अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम की मुखालफत कर रहे हैं, पहले से ही आप खुदा के कलाम की मुखालफत में कोई एक अमल करते हैं और करते जा रहे हैं और धमके की चोट पर करते हैं, इलानिया करते हैं, तो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में इब्लीस को आने से मना नहीं करता। इब्लीस को ऐसी जिंदगी में जाने की इजाजत देगा। बेशक उन्होंने इजाजत ली, लेकिन यीशु मसीह ने जहां पर पहले ही गुनाह मौजूद है, जिथे पहले ही गंदगी है, उत्थे होर गंदगी नूं जान देता यीशु। ठीक है, जहां पर पहले से ही माहौल खराब है, जहां पर पहले ही गुनाह मौजूद है, वहां यीशु मसीह इब्लीस को नहीं रोकता, जाने देता है ना। अय्यूब की जिंदगी में भी यीशु ने जाने दिया, इब्लीस इजाजत ली, वहां पर भी इजाजत ली गई। अय्यूब जो समझता था कि मुझ में कोई गुनाह नहीं है, मैं कभी गुनाह नहीं करता, मैं कामिल हूँ, मैं खुदा से डरता हूँ, मैं बदी से किनारा करता हूँ, मैं हमेशा खुदा की बातों पर अमल करता हूँ, मैं हमेशा खुदा की हुजूरी में कुर्बानियाँ पेश करता हूँ, लेकिन वो ये जानता नहीं था कि इन्हीं बातों का जो हसद है, यही सबसे बड़ा गुनाह उसके अंदर मौजूद है। इसीलिए खुदा ने वहां पर भी इब्लीस को जाने की इजाजत दी, लेकिन खुदा को उसकी एक बात पर बड़ा फख्र था और उसने खुदा के फख्र को भी कायम रखा। जानते ना, उसने खुदा की तकदीर नहीं की। किसी सूरत में जैसी भी हालत हुई, उसको माली तौर पर नुकसान हुआ, उसको जानी तौर पर नुकसान हुआ, उसको मुआशी तौर पर नुकसान हुआ, उसको मादी तौर पर नुकसान हुआ,
उसको जिस्मानी तौर पर भी नुकसान हुआ और उसको रूहानी तौर पर भी नुकसान हुआ, फिर भी उसने अपने खुदावंद के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोला, बल्कि उसने खुदावंद को मुबारक कहा। ऐदा दे लोग भी घट ही लगते। याद रखें, अगर आप इब्लीस को मौका देते रहेंगे तो इब्लीस भी आपकी जिंदगी में मौका ढूंढता रहेगा। फिर वो अयूब जैसी हालत करेगा, फिर वो उस शख्स जैसी हालत करेगा जिसके अंदर वो लश्कर था। तो मेरे अजीजों, अगर ऐसी हालत से बचना चाहते हैं तो खुदावंद के ताबे होना पड़ेगा, क्योंकि एक बात की कमी भी हमें खुदा से दूर कर देती है। जानते ना, एक शख्स यीशु मसीह के पास आया, दौलतमंद था, दुनिया की सारी सहूलतें सब कुछ देख चुका था, लेकिन अब वो अपनी दौलत से खुदा की बादशाही को भी देखना चाहता है। कहता है, मैं कैसे निजात हासिल कर सकता हूँ? तो यीशु ने कहा, हुक्मों पर अमल करो। चंद एक हुक्म दोहराए भी, चोरी ना कर, जिना ना कर, झूठी गवाही ना दे। तो उसने कहा कि ये इन बातों पर तो मैं लड़कपन से अमल करता आया। जानते हैं इस बात को? कहता है, मैं लड़कपन से ये बातें इन पर अमल करता आया। यीशु ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਯीशु ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਕ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਟੋਕਰੀ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਟਿਕ ਟੋਕਰੀਆਂ, बड़े 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 लोग खुदा की मुखालफत कर रहे होते हैं, लेकिन समझते असी बड़े पाक हैं, मेरे तो कपड़े चिट्टे ही होंगे यार, ठीक, मैं तो बड़ा ही पाक रहना, ठीक। हमारी ज़ाहरी हालत जो है ये खुदा पर इफेक्टिव नहीं है, हमारी बातनी हालत जो है ये खुदा पर असरअंदाज होती है। अंदरूनी हालत को दुरुस्त करें, खुदा की नज़र में पाक बने। इंसानों की नज़र में पाक बनने की जरूरत नहीं है। अगर इंसानों की नज़र में पाक बनते रहेंगे तो बनते रहे, खुदा को इसकी कोई परवाह नहीं है। फिर आपकी वही हालत है जैसी इब्लीस करता है, अंदरों अंदर असी खत्म होने। सभी जानते हैं अंदर से हमारी क्या हालत है, हमारी बातनी हालत क्या है, हम सब जानते हैं, कोई भी नहीं, कोई छुपी हुई बात नहीं है किसी की। और ये भी जानते हैं कि खुदा भी हमारी हालत को जानता है, क्योंकि खुदा अदालत भी बातन की करेगा, जाहिरी अदालत नहीं होगी कि यार तो बड़ा सोहना लगन रहा, तो चिट्टे ही कपड़े पाई रखता है, तो रोज ही चर्च जाता है। और रोज चर्च जाने वाले भी अंदर से पाक नहीं हो सकते। अगर उनकी अंदरूनी हालत में गंदगी भरी है, नापाकी भरी है, मुखालफत भरी है, गुनाह भरा हुआ है, तो वो भी खुदा की बादशाही में नहीं जा सकेंगे। याद रखें, वो सब के सब इब्लीस के हाथों जुल्म उठाएंगे इस जमीन पर भी, और वहां पर जाकर तो हमेशा के अजाब में, जैसे उस बदरूहों के लश्कर को अजाब में डाल दिया। अजाब से बचना तो चाहते हैं, सभी बचना चाहते हैं, है ना। मौत तो बड़ा डर लगता है, सबको डर लगता है, लेकिन अगर उनकी हालत उस लश्कर की तरह की है तो फिर उनको अजाब में जाने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती, क्योंकि खुदा किसी की पख नहीं जे मारदा किसी को, ठीक है, साइड नहीं लेंदा खुदा नाजायज किसी की फेवर नहीं जे करदा, ठीक है। खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है, वो पूरा पूरा इंसाफ करेगा, वो गुनाह को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ता। याद रखिए, इलामिया कह रहा हूं, वो कभी भी गुनाह को सजा दिए बगैर कभी नहीं छोड़ता, बेशक उसका बेटा ही उसके सामने क्यों है ना। जब उसके बेटे ने मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए तो छड़िया नहीं, यसू सलीब पे चढ़ाता, सजाए मौत दे दी, यही किया ना। अगर वो अपने बेटे के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकता है तो आप
और मैं क्या चीज है, केड़े बाग दियां मूलियां, है ना, हैं जी कहने। हमें उस वक्त के लिए तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जैसे जैसे वक्त को नजदीक आते देखो, जमा होने से बाज ना आओ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਆਬਾਦੀ 'ਚ 500 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਹੀ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਮਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, हैं जी नहीं। कितना खौफ है, कितना खौफ है खुदा का। कुछ लोग इंसानों के डर से तो इबादत करते हैं, लेकिन खुदा के डर से इबादत नहीं करते। इंसानों ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, लेकिन कभी खुदा ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। खुदा जिंदगियों को चेंज करता है। खुदा हमेशा आपकी जिंदगी को चेंज करने की कुदरत रखता है। आप किसी भी मोड़ पर हैं, जिंदगी के किसी भी हिस्से में हैं, आज भी खुदा आपकी जिंदगी को चेंज करने की कुदरत रखता है, वो कर सकता है। अगर आज ही आप अपनी जिंदगी का फैसला करें तो आज ही वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अपनी सोचों के महवर को थोड़ा चेंज करें, पाकीज़गी की तरफ आए। सिर्फ लोगों से मुकाबलेबाजी ना करें, लोगों की तरफ देख कर ना चाहिए, खुदा की तरफ देख कर चाहिए। खुदा के कलाम की उस पाकीज़गी पर पूरा उतरने की कोशिश करें, जो पाकीज़गी इसके अंदर है, उस पाकीज़गी में ढलने की कोशिश करें, ताकि आपकी हालत उस शख्स की तरह ना हो जो उस बियाबान में बड़ी तशवीशनाक हालत के अंदर है, जो यूब की तरह दुख उठाता है। मेरे अजीजों, अगर दुखों से महफूज रहना आपको अच्छा लगता है, तो बेशक इस दुनिया में दुख उठाते भी हैं, तो यीशु मसीह ऐसी शख्सियत है जो हमारी अंदरूनी हालत को जानता है। और हम जहाँ पर भी हैं, हम बियाबानों में हैं या हम बड़ी अच्छी हालत में अय्यूब की तरह भी हैं, है ना, अहले मशरिक में सबसे मालदार शख्स, तो भी वो हमारी अंदरूनी हालत से वाकिफ है। मेरे अजीजों, आइए अपने आप को उसके सुपुर्द करें जो हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाने की कुदरत रखता है। कोई भी शख्स, कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी बेटा बेटी, बुजुर्ग, खुदा की आवाज से अगर ना वाकिफ रहे या सुनते हुए भी ना सुने, तो फिर वो अपना जिम्मेदार खुद है, कोई उसका जिम्मेदार नहीं। ऐ नहीं कह सकते कि पादरी याकूब साहब ने तो सानू दसिया नहीं, उन्होंने सारी जिंदगी लंघ ही दस दिया तुहानू, ठीक है। तो जो कभी पूछ लीए कि इस गल ते अमल किया तो मूँह थले नूं ही हुंदा है। ना अमल करने वाले च हथ उच्चा हुंदा है ते ना अमल ना करने वाले च हथ उच्चा हुंदा है, ठीक है। उन्होंने सारी जिंदगी लग गई इस काम की। तो मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है। वो आप में से हर एक के बातन की अदालत करने वाला है। उस शख्स की तरह आपको भी खुदा के ताबे होने की जरूरत है। और देखा, जब उसमें से लश्कर निकल गया तो लोग हैरान हुए उसको कपड़े पहने हुए देखकर, और उसको तस्कीन में, सुकून में, आराम में देखकर, क्योंकि उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था, आराम नहीं था, शांति नहीं थी, अमन नहीं था। अब वो पुरअमन है, अब वो लिबास पहने हुए है, वो नंगा नहीं है। नंगेपन को जानते क्या है? शर्मिंदगी। गुनाह हमेशा नंगा करता है। जैसे बाप आदम और हमारे इब्तदाई माँ बाप को वहां पर नंगा किया गया, किसने किया? गुनाह ने। जब सलीब पर यीशु मसीह था, उसके ऊपर हमारे गुनाह थे, तो उसके बारे में भी लिखा है कि वो सलीब पर तन्हा, नंगा और बेयारो मददगार था। और आज भी इब्लीस ने इस शख्स को भी कब्रिस्तानों में नंगा किया हुआ था। और याद रखें, इससे पहले कि आपको भी नंगा किया जाए, आपको भी, आपके गुनाहों को भी सबके सामने लाया जाए, तौबा करें, खुदा की हुजूरी में सच्चाई के साथ आ जाएं, ताकि आपकी ऐसी हालत ना हो। खुदावन इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको
हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे।